منور لوگ ہیں، وہ روشنی آپ کی زندگیوں کے اندر ہے کیونکہ یسوع اس دنیا کا نور ہے۔ آمین۔ اور وہ روشنی آپ کو روشن کرتی ہے جو مسیح سے نکلتی ہے، وہ سچائی آپ کو خدا کے پاس لاتی ہے، وہ نور آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر جاتا ہے۔ سو آج کا کلام آپ کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جیسے آپ آئے ہیں ویسے آپ واپس نہیں جائیں گے۔ یسوع کے نام میں آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ اور آپ کی زندگیاں کثرت سے برکت پائیں، آپ کے گھرانے برکت پائیں۔ خداوند ایک نئے لیول پر آپ کو لے جانے کو ہے، اس لیے اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف مکمل طور پر لگا دیجیے۔ خدا کا روح یہاں موجود ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گا تاکہ آپ کلام کے مکاشفات کو سمجھ سکیں، ان گہری باتوں کو سمجھ سکیں جو آج آپ سیکھنے کو ہیں۔ خدا کا روح آپ کے ذہنوں کو کھولے گا اور آپ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، مسیح کے جلالی نام میں آمین، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ سب کو میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور دی چرچ آف سیکرڈ انوائنٹنگ کی تمام تر ٹیم کی طرف سے، خادموں کی طرف سے بہت بہت میری کرسمس۔ کرسمس آپ کو ایڈوانس میں مبارک ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج کے بعد پھر گھر پاکستان جائیں، ہم سے نہ ملیں، لیکن ہم آپ کو پہلے سے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے اور ہم سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب آسمان کا سارا لشکر مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتا ہے، نیچر جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو جو اس پہ ایمان رکھتا ہے اسے مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آمین۔ بہت سارے لوگ بہت ساری نیگیٹو باتیں کہتے ہیں، لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کسی دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ ہم 25 دسمبر جو دن ہے ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے، ہم اس کو مناتے نہیں ہیں، بلکہ ہم مسیح کی پیدائش کو مناتے ہیں۔ آمین۔ 25 دسمبر جو ہے وہ صرف ایک دن ہے، وہ جسٹ ایک ڈے ہے، جس طرح آج کا دن ہے، کل کا دن تھا، پرسوں کا دن ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو سیلیبریٹ کرنے والی ہے وہ ہے مسیح کی پیدائش۔ آمین۔ یہ ہے امپورٹنس، یہ ہے خاص بات جو ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کسی دن کو اٹھا کے کہیں کہ یہ دن جو ہے وہ دوسروں سے معتبر ہے یا دوسروں سے اچھا ہے۔ دن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خدا نے جو کچھ بھی بنایا اس نے کہا ہر چیز بہتر ہے، اچھی ہے۔ آمین۔ لیکن اس دن جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہم اس کے تعلق سے منا رہے ہیں وہ ہے مسیح کی پیدائش۔ آمین۔ سو اس لیے ہمارے لیے مسیح کی پیدائش سب سے امپورٹنٹ، سب سے خاص ہے۔ جس طرح آپ اپنی پیدائش کے دنوں کو مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جو دنیا کا منجی ہے، دنیا کا کیا ہے جی؟ منجی ہے، سیویئر، انگلش میں کہتے ہیں سیویئر ہے، بچانے والا ہے، چھڑانے والا ہے، ریڈیمر ہے۔ ہم اس کی برتھ کو، اس کے اس دنیا میں آنے کو مناتے ہیں۔ آمین۔ سو ہمارے لیے یہ دن بڑا خاص اور مقدس ہے، اسپیشلی طور پر مسیح کی پیدائش جو ہے وہ سب کے لیے بڑی خاص اور بڑی مقدس ہے۔ آمین۔ کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک عام شخص کی برتھ ڈے نہیں ہے، کسی اور ایسے انسان کی برتھ ڈے نہیں جو بڑا فیمس ہو، بلکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے آنے کا دن ہے۔ آنے کی خاص بات ہے کہ اس نے نجات کا پیغام لے کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ آمین۔ چھٹکارے کا، رہائی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ سو آپ سب کو، جتنے بہن بھائی یہاں موجود ہیں، جتنے ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، ہم سب آپ کو مسیح کی پیدائش کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور آپ کے گھرانے، آپ کی زندگیاں اس دن کے وسیلہ سے یا اس خاص طور پہ برتھ کے تعلق سے بہت بہت بلیس ہوں،
और खुदा का जलाल आपके ऊपर ठहरे रहे। आमीन। आइए एक हवाला देखते हैं, मेरे साथ निकालिए। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा, उसका दूसरा बाब, चौथी आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 18वीं आयत तक। Gospel of Luke chapter 2, we are commencing from verse 4 till verse 16। जब सब निकालें तो आमीन कहें ताकि हम खुदा के कलाम को पढ़ सकेंगे। हालेलुया, सब ने निकाल लिया है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ देखें, और जिनके पास नहीं है वो बड़े गौर से सुनिएगा कि आज का पैगाम क्या है। अपनी अपनी बाइबल साथ लेकर आएं। ऑलवेज मैं ये कहता हूँ, ये आपका रूहानी हथियार है। कितने लोग अपनी बाइबल साथ लेके आए? ज़रा अपने हाथ रेज कीजिए, अपनी बाइबल को एक्चुअली उठाइए, अपने हथियार को उठाइए। जिन्ने फौजी ने थोड़ी फौजी लगते हैं बनते, हथियार कम लोगों के पास है। मोबाइल में एप्लीकेशन है तो वो भी आप खोल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके पास हार्ड कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। ये आपकी मोहब्बत है। बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसे बैग ज़रूर दे के भेजते हैं, किताबें दे के भेजते हैं। ये दुनियावी तालीम के लिए ये लाजम है कि हम बच्चे को किताबें दे के ज़रूर भेजते हैं, और रूहानी तालीम के लिए इतनी सुस्ती और इतनी काहली और इतनी इग्नोरेंस और इतना ज़्यादा लापरवाही, ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ भी हो ना, एक एक चीज कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है, जाहिर करती है। आपका उठना बैठना चलना बात करना, हर चीज आपकी शख्सियत के बारे में बात करता है। लेकिन जब कि आपके हाथ में बाइबल हो, आपके दिल में खुदा का कलाम हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, तो ये भी जाहिर करता है कि आप वाकई ही खुदा की गवाही दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से उससे मोहब्बत रखते हैं। आमीन। सो नया साल शुरू होने वाला है। मैं सबको एडवाइस करना चाहता हूँ, अपनी अपनी बाइबल साथ ज़रूर लेकर आएँ। जितने लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो एक एक बाइबल ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, ठीक है? एक सूट कम कर लें, लेकिन बाइबल ज़रूर ख़रीद लें। वहाँ पर आपके सूट, आपकी टाइयाँ, आपके जो कपड़े हैं वो गिने नहीं जाने, बल्कि आपने कितना कलाम सीखा और कितने कलाम पे अमल किया है, इसी को देखा जाएगा, ठीक है? सो इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि खुदा के कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जो शख्स उसका कलाम नहीं पढ़ता या नहीं सीखता है, वो खुदा की आवाज़ को कभी सुन नहीं सकता और ना कभी पहचान सकता है, क्योंकि खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों से बात करता है। आमीन। सो मेरे साथ निकालिए, पढ़ते हैं हम। पास्टर इरफान, अगर आपने निकाला है तो ऊंची आवाज़ में ज़रा पढ़िएगा। मेरी आवाज़ लास्ट तक आ रही है? आमिर, आपको आवाज़ आ रही मेरी? चल, गॉड ब्लेस यू। लूका तबीब की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी चौथी आयत से। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौटा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़ा में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदाउंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदाउंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक बात बड़ी ख़ास बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इंसान को जब खुदा ने बनाया, खुदा ने सब कुछ पैदा किया और खुदा का एक ख़ास मकसद और पर्पज़ था इंसान की ज़िंदगी से। आज भी बड़ा ख़ास मकसद और पर्पज़ है आप सब की ज़िंदगी के वसीला से। खुदा ने उसे अपनी हम्दो सिताइश, अपनी हजूरी में रहने के लिए खलक किया और ये हमेशा के लिए प्लान था खुदा का। लेकिन इंसान ने इब्लीस के बहकावे में आकर गुनाह किया, गलती की और अपने आप को खुदा के बराबर बनाने की कोशिश की। वो नाकाम कोशिश जिसकी वजह से इस दुनिया में लानत आई और इंसान और खुदा का रिश्ता टूट गया और जुदाई आ गई। इंसान मर गया क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने उसे पहले ही ये कहा था कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन बाग में जो नेको बद की पहचान का दरख्त है उसका फल ना खाना। और जब उसने वो फल खाया तो हम जानते हैं कि उस फल खाने की वजह से इब्लीस ने उसे कहा था तेरी आंखें खुल जाएंगी और तो खुदा की मानित होगा। तो इंसान ने ट्राई की, कोशिश की, क्योंकि इंसान ने खुदा के कलाम पे यकीन ना किया बल्कि इब्लीस की बातों पे यकीन किया। इब्लीस ने उसको आकर बहकाया, उसको बात कही। कलाम में लिखा है इब्लीस जो सब दश्ती जानवरों से ज़्यादा सांप जो था चालाक था। सो इब्लीस ने सांप को इस्तेमाल किया वहाँ पर और उसने जाकर उस औरत को बहकाया। उसने खुद भी खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया। और चूंकि आदम ने अपनी बीवी की बात मानी, बजाय ये कि वो खुदा की बात मानता, बजाय ये कि किसकी बात माननी चाहिए थी, खुदा की बात माननी चाहिए थी। खुदा ने आदम को अकेला पैदा इस पर्पस के लिए किया था ताकि वो कुछ सीख सके। आपको पता है आदम को अकेला पैदा क्यों किया खुदा ने? खुदा चाहता तो आदम और हवा को दोनों को ही एक वक्त एक ही टाइम में पैदा कर सकता था, लेकिन खुदा ने पहले आदम को पैदा किया। क्यों पैदा किया? सोचते हैं आप इस बात को? कभी गौर किया आपने कि खुदा ने आदम को क्यों पैदा किया? ताकि वो ये बात सीखे कि मुझे सबसे पहले खुदा की हजूरी में रहना है। पहला दर्जा किसका है? खुदा का है। सबसे पहली बात किसकी सुननी है? खुदा की सुननी है। उसके कलाम के ऊपर अमल करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा का होना चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे या दूसरी चीजों के पीछे उनको खुदा की जगह पे ना ले जाएं। आज बहुत सारे लोग हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने काम को, अपने दोस्तों को, अपनी ख्वाहिशात को खुदा के लेवल पे ले जाते हैं और वो खुदा को वो देते हैं जो बिल्कुल एंड पे बचा खुचा होता है, जो रह जाता है टाइम। अगर टाइम की बात करें तो सारा दिन अपनी दुनिया के काम कर लेते हैं, लेकिन आखिर में को 5, 2, 4 मिनट कहते हैं चलो अब खुदा से भी बात कर लें, खुदा से दुआ कर लें या कुछ मांग लें, कुछ ज़रूरत पड़ गई या कुछ हो गया। ये वाला बिहेवियर खुदा कभी भी नहीं चाहता। इसलिए उसने इंसान को, आदम को यानी सबसे पहले पैदा किया, सेपरेट पैदा किया, ताकि वो जाने कि मुझे खुदा की हजूरी में रहना है। आमीन। ताकि वो सीखे कि मेरी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा किसका है। और उसके बाद खुदा ने उसे मददगार साथी दिया।
پہلے سب سے پہلے اسے سکھایا کہ تیرا رشتہ میرے ساتھ ہے. کلام میں لکھا ہے خدا ٹھنڈے وقت میں آتا اور آدم کے ساتھ بات کرتا تھا. ایسا ہی ہے. لیکن کیا ہوا؟ گناہ ہوا. میں شارٹ کرتا ہوں اس سٹوری کو، آپ جانتے ہیں. گناہ کے بعد انسان اور خدا کے درمیان جدائی آ گئی. خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس درخت کا پھل کھایا تو مرا. اب مرنا یہاں پر یہ نہیں کہ جسمانی طور پر موت ہو، یہ روحانی موت ہے. موت سے مراد یہاں پر یہ ہے سیپریشن. موت سے مراد کیا ہے؟ سیپریشن. خدا اور انسان کے بیچ میں جو رشتہ تھا، جو ایک ریلیشن شپ تھا، جو انٹیمیسی تھی، وہ ختم ہو گئی. کلوز رشتہ تھا، وہ ختم ہو گیا. وہ رشتہ جو پاکیزگی کا تھا، جو راستی کا تھا، جو گناہ سے پاکیزگی میں رہنے کا رشتہ تھا، وہ ختم ہوا. لیکن پھر خدا نے ہی سارا انتظام کیا، کیونکہ انسان اپنے طور پہ خدا کی حضوری میں کبھی نہیں جا سکتا. انسان نے کوشش کی، اپنی ناقص ٹرائی کی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے خدا کا منظور نظر بن جاؤں، خدا سے پھر رشتہ قائم کر لوں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. خدا نے ہی اس کا سارا انتظام کیا. اور پیدائش 3:15 میں خدا نے پہلی پیشن گوئی کی. فرسٹ جو ہے وہ خدا نے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان. جب خدا نے ابلیس سے بات کی اور اسے کہا کہ تو نے کیوں اسے بہکایا، اور اس کے بعد جب اسے سزا سنائی، تو خدا نے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا جی؟ عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. عورت کی نسل سے، نسل آپ کو پتہ ہے ہمیشہ زیادہ مطلب مرد سے چلتی ہے، لیکن یہاں پر فیمیل کی یعنی عورت کی نسل کی بات کی گئی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا. مسیح یسوع وہ واحد ہستی ہے جو باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے. آمین. صرف اس لیے کیونکہ وہ گناہ سے پاک، اور اس نے انسانی جسم لیا ہے. اس نے اپنے آپ کو، اپنی اس اختیار، اپنی قدرت کو چھوڑا اور انسانوں کے مشابہ ہوا. کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا. پہلے آدم نے گناہ کیا، ہم سب آدم کے اندر اس وقت موجود تھے، لیکن آدم ثانی جو دوسرا آدم ہے وہ مسیح ہے، اور اس کے جب ہم اندر آتے ہیں، جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، تو پھر ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. آمین. اسی طرح ہمیں مخلصی ملتی ہے. تبھی ہم جب کہتے ہیں ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، کیونکہ مسیح یسوع شاہی کاہن ہے. ہاللیلویہ. اس کے وسیلہ سے ہم جو ہے خدا سے دوبارہ جڑے ہیں. یہ رشتہ پھر سے بحال ہوا ہے. اب مسیح کی پیدائش کی طرف آتے ہیں. میں نے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کیونکہ یہ پیشن گوئی تھی نبیوں کے وسیلہ سے. بہت ساری اور بھی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامہ میں ہمیں ملتی ہیں جو مسیح کے آنے کے تعلق سے تھیں. یہاں پر ہم خاص بات دیکھتے ہیں جو میں آپ کو آج سکھانا چاہتا ہوں. بیت لحم جو ہے وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، چھوٹا سا قصبہ، اور یہ داؤد کا شہر تھا. اور یہ پروفیسی کی گئی تھی کہ میں یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، اور اس کی شاخوں سے کیا ہوگا جی؟ اور اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہوگی. یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ ایک خاص پیشن گوئی ہے جو مسیح کے تعلق سے ہے، اور یہ پوری ہوئی. اب خاص بات جو یہاں پر سیکھنے والی ہے، جب یہ ٹائم پورا ہوا، کیونکہ ایک وقت آیا جب پروفیسیز کا اور خدا کا کلام کرنے کا ٹائم فریم رک گیا، ختم ہو گیا. تقریباً 490 سال تک خدا نے کسی پروفٹ سے کلام نہیں کیا، کوئی پیشن گوئی نہیں ہوئی. 490 سال تک جو ہے وہ آگے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تقریباً 400 لگا لیں، 400 کہتے ہیں سارے، تو تقریباً 400 سال تک کا عرصہ ہے. اور اس میں یہ سارا سلسلہ پیدا ہوا کہ کسی پروفٹ سے بات نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد یوحنا آیا جس نے مسیح کی گواہی دی، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کلام کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح پیدا ہوا. یوحنا اور مسیح یسوع جو ہیں دونوں آپس میں کزن ہیں. 6 مہینے کا ان کی برت کا فرق ہے. الشبہ جو ہے وہ یوحنا کی جو ہے وہ ماں ہے، زکریا ان کا باپ ہے، اور جو مقدسہ مریم ہے یہ ان کی کزن ہے. تو یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. اب یہاں پر یہ لکھا ہے کہ
खुदा का कलाम गडरियों पे नाजल हुआ। किन पे जी? चरवाहों पे। किन के जरिया से? फरिश्तों के जरिया से। क्यों नाजल हुआ? क्योंकि वो मुनज्जी जिसके बारे में तमाम तर प्रोफेट्स और अंबिया जिसके बारे में कह रहे हैं, बता रहे कि वो आने वाला है और उसकी पैदाइश बैतलहम में होगी, यहूदा के बैतलहम में होगी। और वो बैतलहम जो है वो दाऊद का शहर है, क्योंकि मसीह यीशु दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ है। आमीन। और ये सारा कुछ प्रोफेसीज में लिखा हुआ है। यहां पर फरिश्तों ने आकर गडरियों को खबर दी, क्योंकि आसमान का सारा लश्कर मसीह की पैदाइश के लिए खुशी मना रहा, सेलिब्रेट कर रहा है। और गडरिये आपको पता है ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी कोई इज्जत और जिनका कोई बड़ा मकाम नहीं होता। उनके कपड़े, उनका रहन सहन बड़ा मुख्तलिफ लगता है, लोग उनको पसंद नहीं करते। हो सकता है स्मेल आती है, बहुत सारी और चीजें हैं। लेकिन मसीह का पैगाम यानी यस्सु की पैदाइश का पैगाम, नजात दहिंदे का पैगाम आसमानी फरिश्तों से शुरू होकर गडरियों तक जाता है। यानी आसमान के लश्कर से लेकर हर उस शख्स तक पहुंचता है जो पस्त हालत में है, जो कम से कम है, जो छोटे से छोटे लेवल पर है, क्योंकि नजात का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। आमीन। नजात का पैगाम किसके लिए है? पूरी दुनिया के लिए है। नेचर से शुरू करके बादशाहों तक वो कलाम पहुंचता है। नेचर से कैसे जी? आसमान पर पूरब में मजूसियों को एक सितारा नजर आता है। इससे पहले वो सितारा कभी नहीं चमका। इससे पहले वो सितारा जो है कभी नहीं चमका। ये पहला मौका था जब वो सितारा नजर आया और वो बिल्कुल मुख्तलिफ था दूसरों से। जो इल्म नजूम को जानते हैं उन्होंने कहा ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जो है वो सितारा है। इल्म नजूम उनको कहते हैं जो सितारों का इल्म रखते हैं, जिनको पता है कि सितारे किस तरह से, ये पूरी एक स्टडी है। उनको मालूम पड़ा कि ये बिल्कुल डिफरेंट सितारा है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो किसने उनको बताया कि भाई ये सितारे की हकीकत क्या है? क्योंकि इससे पहले तो कभी वो सितारा नजर नहीं आया किसी को। खुदा के रूह ने उन्हें हिकमत दी, उनके जहन को खोला, उन्हें तालीम दी, इल्म बख्शा कि इस सितारे का ताल्लुक उस बादशाह से है जो बादशाहों का बादशाह है। आमीन। कलाम में लिखा उसका सितारा देखकर, मत्ती में आप पढ़ें तो लिखा उसका सितारा देखकर हम कहां से आए हैं? पूरब से आए हैं। जब उन्होंने आके हेरोदिस बादशाह से बात की और वो चल पड़े। यानी सितारा यहां पर क्या कर रहा है? गुड न्यूज, बिशारत का काम कर रहा है। सितारा यहां पर एवेंजलिस्ट बना हुआ है कि गडरियों को लेकर यीशु की हुजूरी में आ रहा है। क्या कर रहा है सितारा यहां पर? नेचर जो है वो गुड न्यूज लेकर लोगों तक पहुंचा रही कि वो लोग जाने कि बादशाहों का बादशाह दाऊद के शहर में पैदा हो चुका है। वो मुनज्जी, वो नजात दहिंदा जो सारी दुनिया को बचाने वाला है, जो उनकी खातर उनके गुनाहों के लिए जो है वो अपनी जान देगा, कुर्बानी देगा, वो इस जहान में पैदा हुआ है। सो इसलिए ये सितारा बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ है। वो सितारे को देखकर आए, पता नहीं कितने महीने उन्होंने सफर किया। हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, पता नहीं, नो आइडिया कितना सफर किया। और सिर्फ 3 मजूसी नहीं आए, मजूसी कई निकले थे, लेकिन जो पहुंचे हैं, जो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो 3 हैं। वहां पढ़ें आप उस हवाले को तो आपको मत्ती में मिल जाएगा। बताने का मकसद यह है कि खुदा ने अपने फरिश्तों के वसीला से गडरियों को गुड न्यूज़ दी, नेचर के वसीला से मजूसियों को गुड न्यूज़ दी, बशारत उनको दी कि तुम्हारे लिए एक ख़ास निशान ये है कि ये सितारा उस बादशाह का है जो इंसान बनी नो इंसान को गुनाह से निकालने वाला है। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो आपको पता है इब्लीस ने भी अपना काम किया। हेरोदिस
इस बात के लिए नहीं उनसे पूछ रहा कि मैं यीशु को जाके सजदा करूं या यीशु को एक्सेप्ट करूं, बल्कि इसलिए पूछ रहा है कि उस बच्चे को मेरे होते हुए दूसरा बादशाह यहां पर कैसे पैदा हो सकता है। सो उसने अपने तौर पे प्लान बनाया कि मैं बच्चों को कत्ल करता हूं। लेकिन खुदा जिसने एक पूरा मंसूबा और प्लान यीशु के लिए तरतीब दिया था, कोई भी उस प्लान को खराब नहीं कर सकता था। इब्लीस ने बड़ी कोशिश की, यीशु मसीह के सलीब तक पहुंचने तक उसने बड़ी कोशिश की कि उस प्लान को खराब करे, लेकिन कभी भी वो उस प्लान को पूरा ना कर सका। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, आज आपके पास गुड न्यूज़ पहुंची है। आज आप जानते हैं कि मसीह यीशु निजात दहिंदा है। आज आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। क्या आप लोगों को अब बशारत या दूसरों तक अपने ये गुड न्यूज़ मसीह की पैदाइश की लेकर जा रहे हैं? हमने पढ़ा यहाँ पर कि जब गडरियों के पास फरिश्ते आते हैं तो पहले गडरिये जो है वो डर जाते हैं फरिश्तों को देखकर। एकदम से जो नूर चमका तो वो डर गए, लेकिन फरिश्तों ने कहा जी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें खुशी की खबर देने आए हैं, बड़ी बशारत देने हैं। और वो बशारत ये है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हो गया है। कौन पैदा हो गया जी? सारे कहे मेरा मनज्जी यीशु इस दुनिया में आ गया है। हालेलुया। सो उसने गडरियों से कहा कि तुम्हारा मुनज्जी पैदा। उस वक्त गडरियों से वो कलाम कर रहे थे, पर आज हम जानते हैं ये कलाम हमारे लिए है। हमारा मुनज्जी इस दुनिया में आया है। आमेन। आवर सेवियर जो है वो इस दुनिया के अंदर आ चुका है। अब क्या किया इन्होंने गडरियों ने? बातें सुनी, फरिश्तों ने खबर दी, सारा कुछ किया। तो क्या किया? गडरिये वहां पे सो गए। उन्होंने कहा यार रात दे 12 बजे की जाके करना, जरा रेस्ट कर ली, कल जावांगे। अभी हमने क्या पढ़ा? जो खबर उन्होंने सुनी थी, उन्होंने क्या किया जी? जल्दी आपस में बात की कि चलो यार ये खबर हमें पहुंची है और बड़ी खास खबर है। किसी इंसान ने नहीं दी, किसी और शख्स ने नहीं दी, बल्कि फरिश्ते ये खबर देने के लिए आए हैं। इसका मतलब है ये खास बात है। आपने देखा होगा अगर आपके पास किसी खास शख्स का मैसेज आए, किसी खास बंदे का, किसी बड़े बंदे का मैसेज आए, तो आप कहते हैं नहीं यार किसी खास बंदे ने गल की थी। आप हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि उस शख्स की बात को रखें और उस काम को पूरा करें, या जो कुछ उसने कहा है उसके ऊपर क्या करें? अमल करें। सो ये मैसेज खुदा की तरफ से फरिश्तों के वसीला उन तक पहुंचा। क्या मैसेज पहुंचा? कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। किसके शहर में? दाऊद के शहर में। और आज आप तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि मसीह यीशु दुनिया का निजात दहिंदा है। आमीन। आपका काम क्या है? उस मैसेज को लेकर दूसरों तक जाना, उस मैसेज को लेकर क्या करना? उस कलाम के ऊपर क्या करना? अमल करना। यह है आपका काम जो आपने करना है। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। मत्ती के 28वें बाब में 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया के पास जाओ और जाकर उनको क्या करो? अंजील की बशारत। अंजील का मतलब क्या है? अंजील का मतलब क्या है जी? इंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी, गुड न्यूज। और गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह इस दुनिया में मौजज़ाती तौर पर खुदा के प्लान के मुताबिक पैदा हुआ, बनी नौ इंसान के गुनाहों का फिदिया दिया, उसकी कीमत चुकाई, मसलूब हुआ, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर हर शख्स को नई जिंदगी उसने बख्शी है। हालेलुया। ये है गुड न्यूज, ये है खुशखबरी। और ये खुशखबरी आप सब ने दूसरों तक लेके जानी है। इस साल कमिट कर ले, खुदा के साथ वादा कर ले कि खुदावंद
मैं तेरे कलाम के ऊपर अमल करूंगा, मैं तेरे हुक्मों के ऊपर अमल करूंगा और मैं तेरा कलाम अपनी जिंदगी से, अपने मुंह से, अपने कामों से दूसरों तक लेकर जाऊंगा। आमीन। आमीन क्या के वेखो कुछ नहीं होता। आमीन। आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, आप ऐसा कर पाए, क्योंकि खुदा का मकसद आपकी जिंदगी से ऐसा है। दुनिया में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, बादशाह पैदा हुए हैं, दुनिया में फिलोसोफर पैदा हुए हैं, दुनिया में बड़े बड़े अच्छे सिंगर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए हैं, हुकूमतें पैदा ही हैं, लेकिन आज तक सेवियर कभी पैदा नहीं हुआ। सेवियर एक ही है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। एक ही निजात दहिंदा पैदा हुआ है और वो यीशु मसीह है। निजात किसी दूसरे के वसीला से नहीं है। हालेलुया। निजात किसी दूसरे के, किसी और के वसीला से नहीं है, सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है और वो सब नामों से आला नाम है और वो यीशु का नाम है। आमीन। एक ही नाम है जिसके वसीला से हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस सिर्फ नए कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी डेकोरेशन करना, अच्छे अच्छे सॉन्ग गाना, अच्छे अच्छे खाने खाना, सिर्फ ये नहीं है। क्रिसमस का मकसद ये है कि आप उस पैगाम को कैरी करें, उसे लेकर जाएं दूसरों तक, जिस तरह फरिश्ते गडरियों के पास आए हैं और लिखा है आसमान का सारा लश्कर खुशी मनाते हुए उनके सामने हाजिर हुआ, उनके सामने जाहिर हुआ और कहा कि आलम बाला पर क्या है जी, खुदा की तमजीद हो, खुशियां मनाई जा रही हैं। और इसीलिए आपको मैं एक और बात बताऊं, जब कलाम मुकद्दस में लिखा है एक भी गुनाहगार जमीन पर तौबा करता है तो क्या होता है जी, आसमान पर कितनी खुशी मनाई जाती है। लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पता क्यों? वो कहते ऐसे बंदे को मैसेज पहुंच गया, निजात का पैगाम इस शख्स तक पहुंच गया है, और जब वो पैगाम पहुंचता है इसका मतलब है खुदा का कलाम पूरा हुआ है। आमीन। खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता है। गडरियों ने सुस्ती नहीं की, काहली का मुजाहरा नहीं किया। थके होंगे, सारा दिन हो सकता उन्होंने पता नहीं कितने किलोमीटर सफर किया हो, बकरियां चराते हुए, सर्दी का मौसम था, झाड़े का मौसम था, आग जलाकर वो क्या कर रहे थे, ताप रहे थे। तो आप इमेजिन करें कि ऐसे मौसम में फौरन निकलना, उठ खड़े होना और उस बात की तस्दीक करना जिसके बारे में फरिश्ता ने कही। आप गुड न्यूज देने के लिए रात को उठ के दुआ करते किसी के लिए, किसी फैमिली के लिए, अपने किसी भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे बेटी के लिए? बताइए जरा, करते उठ के दुआ कि किसी की जिंदगी के अंदर को मौजज़ा हो, किसी की जिंदगी में काम हो। सबसे बड़ी बात है वो जिंदगी जो खुदा से दूर है नजात पाए और खुदा के पास आ जाए। नींद सबको बड़ी अच्छी लगती है, आराम करना किसको पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है। लेकिन जब मसीह का पैगाम आप तक आ गया ना, तो आपकी अव्वल तरजीह यह है कि सबसे पहले वो पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं। आमीन। उन जिंदगियों के लिए रखनों में खड़े हों, जागें और दुआ करें कि खुदा उन जिंदगियों को बदले, खुदा उन्हें तब्दील करे। आपकी अच्छी गुफ्तगू से कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जब आप किसी के लिए दुआ में ठहरेंगे, खुदा की ताकत और कुदरत पाक रूह के जोर के वसीला से मौजज़ात होंगे कि खुदा का रूह उनके दिलों को बदलेगा, उनकी सोचों को बदलेगा, उनके ख्यालों को बदलेगा। मैं ऑलवेज कहता हूं, जिसके पास भी आपने कलाम की बात लेकर जानी, गुड न्यूज जानी, पहले दुआ करें उन लोगों के लिए, उन जिंदगियों के लिए खुदा के हुजूर ठहरें। आपको पता, रात को यहां पर जब हमने सारा ये सेटअप अरेंज किया तो पूरी टीम यहां पर चेन प्रेयर में खड़ी थी, एक एक चेयर के ऊपर हाथ रख के दुआ की थी, ताकि जब आप यहां पर आएं तो आप खुदा के रूह से भर के जाएं, आप जैसे आए हैं वैसे वापस ना जाएं। यह जिम्मेदारी आपकी भी है।
ایک ایک زندگی کے لیے خدا کے حضور برکت کو مانگیے, ایک ایک زندگی کی تبدیلی کے لیے خدا کے حضور دعا کریں, رخنوں میں کھڑے ہوں. آپ سب بچائے جا چکے ہیں, بار بار آپ کے لیے نجات کا پیغام نہیں ہے کہ ہر روز اٹھا کے کھڑا کر دو جی کنے توبہ کرنا چاہتے ہیں. آپ آلریڈی بچائے جا چکے ہیں. جس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے وہ بچایا جا چکا ہے. اب آپ کا کام ہے دوسروں کو بچانا. آپ کا کام ہے صرف خالی کلے ہی سیلیبریٹ نہ کر دے بلکہ دوسروں کو بھی نجات کا پیغام دیں. دنیاوی باتیں ہم بہت ساری کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, بہت ساری انفارمیشن دیتے ہیں, بڑے بڑے اچھے ویلفیئر کے کام ہم جو ہے کرتے ہیں. کیا ہم نجات کا پیغام بھی دوسروں سے شیئر کرتے ہیں؟ اس کرسمس کا مقصد خاص اپنی زندگی میں رکھیے کہ میں خدا کے پیغام کو دوسروں تک لے کے جاؤں گا, میں یہ میسج دوسروں تک لے کر جاؤں گا. میں واقعی ہی بتاؤں گا کہ میں یسوع کے لہو سے بچایا گیا ہوں, میں خریدا گیا ہوں, میں اس کی دی ہوئی قربانی کی قدر کرتا ہوں اور اس کا جلال اپنے بدن سے ظاہر کروں گا, اپنے کاموں سے ظاہر کروں. سیلیبریشن میں کئی دفعہ ہمارے بہن بھائی بھول جاتے ہیں, ناچ رنگ, شراب اور پتہ نہیں کس کس طرح کی چیزیں جو غیر ایماندار بھی نہیں کرتے وہ بھی کر کے وہاں گے. اسپیشلی کدوں جب کرسمس, جب وڈا دن, کئی کچی شراب پی کے مر جاندے, اکھاں انیاں ہو گئیاں. پچھلے کو 2-4 سال پہلے کیا ہوا, کوئی سستی شراب مل رہی تھی پاکستان میں, تو کچھ لوگوں نے خریدی کراچی میں, کافی سارے لوگ اس کی وجہ سے مر گئے, کوئی اندھے ہو گئے, کوئی مر گئے. تو ایک اتوں سستی لے کے پنجاب گیا, آپ بھی مر گیا, مامے نو بھی مار دیتا پہ آ کے, ماما پتریا دونوں پی کے مر گئے. اے پیغام دیتا جا کے مامے نو, انہیں کہا اللہ پڑھ ایل زندگی تے آندے نے. او بھائی آپ لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں, سستی شراب لے کے جا کے پیا کے انہوں نے مروا دیتا. زندگیوں کا نقصان نہ کریں بلکہ کیا کریں, خدا کے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں بچائیں. آمین. اچھا پیغام لے کے جائیں. فرشتے گڈ نیوز لے کے آ رہے ہیں تے مسیح جڑے نے خطرناک خبراں لے کے آ رہے ہیں. اے ہن بھی کرسمس آ رہا, خدا خیر کرے, اچھیاں خبراں ہون, وہ پتہ نہیں ہوندا, کدی کدی خطرناک خبراں بھی آ جاندیاں. مقصد یہ ہے کہ اگر فرشتے اچھی خبر گڈ نیوز دے رہے ہیں تو آپ کا کام ہے آپ بھی یہ گڈ نیوز دوسروں کو دیں. آمین. حالی چوکلیٹیں نہیں کھانی. اے خدا دا کلام جڑا شاید تو بہتا میٹھا ہے. ہالےلویا. لوگ تانوں کہن گے کرسمس دا کیک کتے وے, انہوں کو دیا کلام ہے ساڈے کو, کیک نالوں بہتا میٹھا اور بہتا طاقتور. ہالےلویا. کیک کھاؤ گے شوگر ہو سکتی ہے, کیک کھاؤ گے اب تہاڈوں پرابلم پیدا ہوئے گی باڈی چ. اے کلام جڑا نا اے کسے دی زندگی چ پرابلم نہیں پیدا کرتا بلکہ کیا کرتا ہے, جڑیاں پرابلم نے انہاں نوں بھی کٹ دیندا ہے. ہالےلویا. یہ کلام جو ہے یہ سب سے قیمتی اور میٹھا ہے. آپ لوگوں کو یہ دیجئے گا. ہم لوگوں کو تحفے دے کے تو پھر کیا خیال ہے, ہم سیلیبریٹ کرتے نا, یہ ہم گفٹ دیتے, محبت ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, میں منع نہیں کرتا, لیکن سب سے بڑا گفٹ نجات کا پیغام ہے. ہالےلویا. سب سے بڑا گفٹ خدا کا کلام ہے, اگر آپ کسی کو خدا کا کلام دے دے تو. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین. اقرار کیجئے, ارادہ کیجئے. کتنے لوگ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہم خدا کا پیغام دوسری زندگیوں تک لے کے جائیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے. یہ آپ کا اقرار خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ ہے, کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, بی سیریس ہو کے اس بات کو کیئرفلی دیکھیے گا. آج آپ زندہ ہیں, کل کو آپ کا نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خدا کی حضوری میں جب آپ نے جانا ہے تو آپ سے خدا نے دنیا کی چیزوں کا تو نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنے اچھے کپڑے پہنے, کتنی اچھی جاب کی, لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے خدا کے کلام کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا. آپ نے
मसीह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, इन बातों को ज़रूर पूछा जाएगा। क्या आपने नजात पाई या नहीं पाई, यह ज़रूर पूछा जाएगा। यह ज़रूर पूछा जाएगा कि आप गुनाह से दूर रहे या नहीं रहे, क्या आपने पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारी या नहीं गुजारी, ये ज़रूर आपसे जो है वो पूछा जाएगा। बल्कि आप ना भी कहेंगे, खुदा आपके दिलों को जानता है, खुदा आपके जहनों से वाकिफ़ है, खुदा आपकी सोचों से वाकिफ़ है। खुदा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। इंसान से आप छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज इकरार करें, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और कहिए, मैं खुदा की हजूरी में इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं खुदा के कलाम को दूसरों तक लेकर जाऊँगा। मैं खुद भी खुदा के कलाम पे अमल करूँगा और मैं दूसरों को भी खुदा के कलाम के ऊपर अमल करने के लिए नसीहत करूँगा और दूसरों तक खुदा का पैगाम लेके जाऊँगा। मैं अपनी ज़िंदगी से किसी के लिए भी ठोकर का बायस नहीं बनूँगा। हालेलुया। कादर मुतलक खुदा, मैं तेरे हजूर तेरे बेटे बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ। यस्सु के लहू में इन्हें कवर करता हूँ खुदावंद। हर एक ज़िंदगी जो अभी तक खुदावंद तुझे नहीं जानती मुकम्मल तौर पर, या अभी भी तुझसे दूर है, यस्सु के नाम में उनके दिलों को बदल दे मेरे आसमानी बाप। पाकर उनके दिलों को छू, उनकी सोचों को, ख्यालों को बदल, ताकि वो खुदा बाप के साथ उस मजबूत रिश्ते में कायम हो जो खुदा चाहता है। अब आप एक एक घराने को मैं ब्लेस करता हूँ और ख़ास तौर पर खुदावंद, जब क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने को हैं, तेरे बेटे की पैदाइश को मनाने को हैं, तो खुदावंद मैं इनके लिए खुदा तेरे हजूर तंदुरुस्ती, सेहत, उम्र की दराजी और खुदावंद तेरी हिकमत इनके लिए मांगता हूँ। खुदा जो बहन भाई ट्रैवल करने को हैं, मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ। उनके सफ़र को मुबारक करना, खैरियत से उन्हें लेकर जाना और खैरियत से उन्हें वापस लेकर आना। ए बाप, इन जिंदगियों के वसीला से खुदा तेरे नाम को हमेशा इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे, हमेशा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरे बुजुर्ग नाम से ये दुआ मांगता हूँ। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया।